Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We start with the recitation of Holy Quran. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. सदक़ल्लाहु। इस सेशन में हम जो हमारे कोर्स के हिसाब से जो लास्ट ऑफ जो फोर टॉपिक्स में से एक टॉपिक है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी जो सब्जेक्ट्स या बहुत सारी जो कोर्सेज जो डिजिटल लॉजिक से लिंक्ड हैं उनका ताल्लुक जो है वो सीक्वेंशियल लॉजिक है उससे बनता है। So we start today's session from the chapter number 5 of the book. अस्सलाम वालेकुम फैसल, क्या हाल है? आप ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आप ठीक है, खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। अभी आपके और भी साथी इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेते हैं। We start with our topic and our topic is chapter number 5. चैप्टर 5 जो है इसमें हम स्टडी करेंगे सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। मुस्तफा ने भी ज्वाइन कर लिया है। सो इन द इंट्रोडक्शन, a number of electronic devices, for example mobile phones, smartphones, computers, they are primarily their working is dependent on the binary format of information because they are digital devices and we have defined a digital system which process information in binary form. So if we read the first line, handheld devices, cell phones, navigation receivers, that mean the GPS, personal computers, digital cameras, personal media players, and virtually all electronic consumer products have the ability to send, receive, store, retrieve, and process information which is represented in a binary format. So this is primarily a opening sentence which shows that every digital device primarily relies on the binary format of information. The second thing is these devices have memory, so they can store information and they can primarily, after processing and receiving, they can store information, they can send information, but they do have a memory. So before that, in earlier chapters 1 से लेके 4 तक, we are mostly relying on the combinational circuits. What is particular or typical to the combinational circuit is that those circuits have inputs, a number of inputs, and one or more outputs. So a number of inputs are there, and we have the output, and whenever we apply some input, they give us output instantaneously,
This is a combination COMB. Okay. Okay, and they do not have any memory inside. No memory or no memory element. But on the other side, sequential circuits, they have or they act as a storage element, or they have memory, and they can store information, and they can. So we can extend this combinational logic to have a memory element to interact with the some memory element, MEM memory, or only memory. Now this circuit is transformed into what is called a sequential circuit or sequential logic circuit. So initially in combinational logic, COMB or C for short, in a combinational logic, the output O is a function of only input only. Okay. But in the case of sequential circuits is the output is now the function of input and as well as a function of, let me call it G. G is another function with which is depending on the input and the value which is stored in the memory. So this is the difference between two circuits. जी फैसल, आपको ये चीज समझ में आ रही है? जी सर आ गई है। मुस्तफ़ा आप बताएं। यस सर क्लियर है। हम इसको जो किताब ने डायग्राम दी है हम उससे थोड़ा सा सीखते हैं, फिर दोबारा जो है वो हम जो इंट्रोडक्शन के बाद वाला सेक्शन है उसको रीड करेंगे। तो मैं ये एनोटेशंस जो है इनको वाइप कर रहा हूँ एंड आई एम मूविंग टू द डायग्राम। देखिए ये डायग्राम है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। इट कंटेन्स ए कॉम्बिनेशनल सर्किट and this combinational circuit has a connected to a memory element as well, and this is a back connection as well, so it can interact with the memory element. We have usually the inputs and the outputs. So in this case जो additional concept है that is called a state. जैसे गाड़ी है, गाड़ी को हम स्टार्ट कर देते हैं तो अब उसकी स्टेट चेंज हो गई है। गाड़ी को हम पार्क कर देते हैं और गाड़ी को बंद कर देते हैं, गाड़ी के इंजन को, तो अब वो एक पार्किंग स्टेट में है। इसके बाद जब स्टार्ट करेंगे तो वो अब स्टार्ट हो गई। फिर गाड़ी को हम जो है वो चलाएंगे तो गाड़ी जो है वो फिर रनिंग स्टेट में आ जाएगी। तो इस तरह गाड़ी की डिफरेंट स्टेट हो सकती है। जब हम मेमोरी एलिमेंट की बात करेंगे और मेमोरी एलिमेंट में जो बेसिक एलिमेंट है, मेमोरी एलिमेंट कैन स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन, memory element, okay, ME. This memory element can store a binary value B, and that the value can be 0 at a time, it can be 1 at a time. तो ये तो उस सूरत में है अगर मेमोरी एलिमेंट जो है वो सिंगल मेमोरी एलिमेंट, ओनली वन मेमोरी एलिमेंट। इफ देयर आर मोर देन वन मेमोरी एलिमेंट्स then they can store a binary code
जो कि मे बी 4 बिट हो सकता है, 8 बिट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द जो मेमोरी की कैपेसिटी। ठीक है, जब हम मेमोरी पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो if we have a memory element which can store information in 2 bits, for example B1 and B0, then there are 4 combinations are possible that at any point in time जब सर्किट चल रहा है, रनिंग कंडीशन में है, so it can have either इन 4 कंडीशंस में से कोई एक जो जो स्टेट उसकी जो होगी वो होगी, या तो उसके अंदर 00 होगा, या 01 होगा, या 10 होगा, या 11। इसी तरीके से हम 3 बिट मेमोरी एलिमेंट की भी बात कर सकते हैं, एंड सो ऑन। So the main thing over here is the concept of a state. Concept of a state. Okay. When we talk about the memory elements, then one memory element is more prominent and used in electronics widely. This is called a flip-flop. ठीक है, फ्लिप फ्लॉप क्या है? ये अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर पढ़ा हो या बाद में पढ़ेंगे, दिस इज ए memory element on which the state is depending on the presence of a clock. So we can change the contents of a flip-flop by using a clock pulse. Clock pulse क्या होती है? Clock pulse has a logic which has a rising and falling edge, and it repeats itself after some time. Let's say it starts from here, then it repeats again from here. Okay? It starts repeating itself, and it has a time period जो कि यहाँ से लेके यहाँ एक टाइम पीरियड है, उसके बाद ये खुद को रिपीट करता चला जाता है। क्लॉक इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी एल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। So if we consider it is a 0 initially, on a clock pulse we can make a change from 0 to 1, and on the next clock we can make a change from 1 to again 0. So this is possible through this arrangement which is called a clock. Okay? तो ये एक स्पेशल फॉर्म है सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स की जो कहलाती है सिंक्रोनस। ओके, इसका नाम देखते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ उसमें सिंक्रोनस क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट्स। ये जो है ये हम स्टडी करेंगे। जी दिलावर, क्या हाल है? आप ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताइए। शुक्र खुदा का। ओके, नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स, और उसके बाद जो है वो हम एक सर्किट को एग्जामिन करेंगे। ओके, सो वी हैव गॉन थ्रू द कंसेप्ट ऑफ स्टेट। यहाँ इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लीजिए। द बाइनरी इंफॉर्मेशन stored in the memory elements at any given time defines the state of the sequential circuit at that time. So it is depending upon the time. So this is the definition of state.
state of a sequential circuit. Okay. So this is an important concept, और इसमें जो सिंप्लिसिटी है कि ये वो वैल्यू है जो कि सर्किट के अंदर से होगी, ठीक है, सर्किट के अंदर से होगी। वो मूव फॉरवर्ड, इस डायग्राम से हम गो थ्रू हो चुके हैं कि इससे पहले हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम एक ट्रूथ टेबल की सूरत में रिप्रेजेंट करते रहे। ट्रूथ टेबल जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर इनपुट के तमाम कॉम्बिनेशन होते हैं, और इसी तरीके से जो है वो हमारे पास आउटपुट के तमाम कॉम्बिनेशन होते हैं। एंड दिस डिफाइंस द सर्किट, जिससे हम सर्किट बना सकते हैं। इसका डिजाइन हम पढ़ चुके हैं, इसका एनालिसिस हम पढ़ चुके हैं, और इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हमने सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट को डिजाइन करने का जो है वो सीखना है, हाउ वी डिजाइन द सीक्वेंशियल लॉजिक। Then there is the definition of sequential circuit. Okay, so a sequential circuit is specified by a time sequence of inputs, outputs, and the internal states. So this is the definition. और इसका कंट्रास्ट भी है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स पे, विच ओनली डिपेंड ऑन द इनपुट्स, जिसकी आउटपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट के ऊपर डिपेंड करती है। एंड देन इन द सेकंड पैराग्राफ जो इस पेज पे है, it defines two important classes of sequential logic, which is called synchronous and asynchronous. Synchronous sequential circuit and asynchronous sequential circuit. Synchronous circuits have a clock. अभी हम थोड़ी देर देख के आए, they have a clock to change the internal state. Whereas in asynchronous there are the clock is not present, but there are other inputs are also present. That means it can have other inputs to make a change in the internal states as well. It may include clock as well. Clock भी इसमें हो सकता है, but the other inputs can also play a role. इसकी डायग्राम यहाँ नहीं दी गई, लेकिन हम इसकी डायग्राम बना सकते हैं। Going to the flip-flops, the storage element, the second section of the book, which bring us the concept with the memory elements. के memory elements क्या होते हैं, और जो दो important इनकी classes हैं वो क्या है। So one of the type is called flip-flops and another type is called the latch. Latch is also called a basic flip-flop. Latch. Okay. What is special with the latch is a latch depend on the level of the clock. So we can make an arrangement in which the logic can change only on depending upon the high clock or the low clock. This is depending on the latch. But when we talk about the flip-flop, the output in the flip-flop is primarily dependent on the presence of the change occurs at the rising or at the falling clock.
ये एक चेंज है, इसको मैं रिपीट करता हूँ कि जो हमारे पास फ्लिप लैचेस हैं उनके अंदर चेंजेस जो होती है स्टेट में, यानी 0 से 1 और 1 से 0, वो लेवल जब मेंटेन होता है उस दौरान में चेंज होता है। हाई लॉजिक या लो लॉजिक, तो ये लेवल कहलाता है, लेवल सेंसिटिव कहलाता है। ये यहाँ लिखा हुआ होगा, दीज आर लेवल सेंसिटिव डिवाइसेस, level sensitive devices, but the flip-flop are edge sensitive devices. So the change in a flip-flop is made whenever the clock changes its state, its logic level from 0 to 1 or from 1 to 0. तो ये इनके दरमियान बेसिक डिफरेंस है, और आमतौर पे लैचेस को ही फ्लिप फ्लॉप के तौर पे यूज किया जाता है और लैचेस को ही एनहेंस करके फ्लिप फ्लॉप बनाया जाता है। ये हम देख लेंगे ये कैसे होता है। अब हम सर्किट की तरफ चलते हैं, जो कि बेसिक लैच का सर्किट है। ओके, दिस इज कॉल्ड एसआर लैच विद नॉर गेट्स। So what is special with the NOR gates? To study the NOR gates, which is in short for the NOR, or so if we have two inputs, let's say X and Y, so we write all combinations. So X or Y can be written as that if any of the input is 1, the output is 1. हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि if all the inputs are 0, then the value is 0. इसको डिफाइन कर सकते हैं। Then the not mean we have to show a bar, not or. So it is 1, 0, 0, and 0. So the definition of NOR gate is if the inputs are 0, then the output is 1. This is the definition of a NOR gate. Now we go to the logic diagram with our knowledge, जो हम पहले से जानते हैं, and see there are two NOR gates, and their circuit is in such a way that one input is R, which is a short form of reset, and another input is S, which is a short form of set. So we can reset or we can set this SR latch. ये असल में इसका नाम RS होना चाहिए, but anyhow it is a set reset latch. Okay. In short, we write SR latch, the latch which can store either 0 or 1, or there are two outputs are provided, Q and the complement of Q. So
we need to analyze this circuit, and the truth table is called a function table. A function table. So we start with the initial condition when S is 1 and R is 0. लेकिन जब हम ट्रूथ टेबल पे जाएंगे, then we also have a combination in which R is 0 and S is 0. ओके, और जब हम नॉर की डेफिनेशन को देखेंगे तो नॉर की डेफिनेशन ये कहती है व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0 देन आउटपुट इज 1. या मैं थोड़ी देर के लिए रुकना चाहूंगा इससे पहले कि हम इसको इनपुट्स दें और आउटपुट्स दें. जी स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. दिलावर, आपका कोई सवाल है बेटा? नो सर. ओके फैसल, आपका कोई सवाल है बेटा इस वक्त? नो सर. ओके मुस्तफ़ा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा इस वक्त? नहीं सर. Okay, thank you very much. So let's say we have the input 0 0 applied. 0 is here and 0 is here. Okay. Okay, we want to find what is on the output. जी, क्या है आउटपुट? तो क्या नॉर की एक कोई ऐसी डेफिनेशन है जिसमें अगर एक इनपुट 0 हो तो हाँ हम लिख सकते हैं आउटपुट पे कि क्या आएगा? ओनली सिंगल इनपुट. हमें ये नहीं मालूम कि यहाँ पे क्या है. लेट्स राइट x here. ओके, x mean don't care condition. We don't know what is on the other input. Okay, so there are two combinations. So on NOR, the two combination for 0 0 and 0 1, the two possibilities. Okay, 0 0 and 0 1. 0 0 के केस में देखिए क्या होगा. आंसर इज 1. और 0 1 के केस में क्या है? आंसर इज, जी बेटा बोले, कोई बोले? फैसल आप बताइए. 0. 0. So we cannot determine the output because there is no definition which calculate 0 plus x and under nor of this. Okay, so nor of 0 and x, because the value is not a single value but value is primarily depend, and it is another don't care, we do not know about it. Okay, and it depends on x. So that means we must assume a condition in which एक वैल्यू जो है वो 0 ना हो. लेट्स से वो वैल्यू जो है वो कोई और कंडीशन हो, दोनों जगहों पे 0 0 जो है वो ना हो. ओके, क्योंकि 0 0 से जो है वो हम आउटपुट को मालूम नहीं कर सकते. देन वी मेक ए स्मॉल चेंज and we take the first value. Okay, so now s is 1, तो s को जो है मैं वही यहाँ 1 लिख देता हूँ. Okay, Nasir is also joined. Okay, now the question is 1 and don't care what will be the output. So there are two possibilities.
either we are to calculate 1 plus 0 bar and 1 plus 1. Okay, so we go to the table and see 1 0 1 0 and 0 1, they both cases get 0, and with 1 1 we also get 0. So for both cases we get an output of 0. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये अब हमें पता चल गई। दोबारा से रिपीट करता हूं इसको। इससे पहले सबसे पहले हमने 0 0 ट्राई किया। 0 0 ट्राई करने से हमें ये पता चला कि हम आउटपुट फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज द डेफिनेशन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दैट यूनिक केस 0 0 की सूरत में। लेकिन जब हमने चेंज की एक वैल्यू यहाँ से टेबल में से ली S10, तो अब हमने देखा कि फॉर दिस गेट वी कैन हैव एन आउटपुट, और वो आउटपुट कैसे हमने मालूम की 1 और ये जो नॉट ये कंडीशन जो डोंट केयर कंडीशन है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। बट फॉर द बोथ केसेस द ट्रूथ टेबल of NOR gate says that the answer is 0, and so we get a 0 here, and then this 0 will propagate through this connection, and this value will no longer be a don't care condition and it will change. Previously हमें नहीं पता था कि ये क्या है, but the don't care condition may be 0, may be 1, it now changes to 0. And when both inputs are 0, from this truth table, we get the output of NOR gate is 1. So this is also resolved. And we get 1, and this circuit becomes stable. With a small period of time, जिसको हम ignore भी कर सकते हैं, when we place 1 here, logic 1 here, the output of the circuit will become 1 0. So this is 1 0. And then we do one more thing, and that thing is we make a change in S to go to 0. So I just have to so the transition of S from 1 to 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। देखें, अब पहली जो लाइन है इसको हम वर्कआउट कर चुके हैं इस सर्किट के ऊपर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड ऑप्शन। देखिए गाड़ी जो है ना वो स्टार्ट हो गई है और आपने गियर में लगा के उसको तीसरे गियर में ले गए या चौथे गियर में ले गए गाड़ी। अब गाड़ी को गियर चेंज नहीं करना क्योंकि आगे तो ट्रैफिक रोड वो है ना, एम्प्टी है। नो यू हैव टू गो। No, we make a change here and we make it 0. और एक चीज रिमेंबर कीजिए कि ये x भी अब चेंज हो चुका है। ये अब x चेंज होके 1 हो चुका है। Okay, when we change 1 to 0, then ट्रूथ टेबल से हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 और 0 का नॉर क्या है। So 1 और 0 जो है वो जब भी आता है उसका नॉर जो है वो 0 होता है। So this 0 will remain there. 0 will remain there. There is no change in the circuit. So we get this the same output for 0 0. ये हमने चेंज क्यों किया है? Because normally in a normal operation we want के दोनों जगहों पे 0 हो इनपुट पे और हमारे पास आउटपुट पे एक स्टेट हो, एक स्टेट मेंटेन हो। ये आउटपुट पे जो वैल्यूज है, दिस Q वैल्यू इज ए स्टेट।
जो कि इस वक्त 1 है। ये 1 है, ये 1 रहेगी। जब हम इसको रीसेट करना चाहें, यहाँ पे हम 0 से थोड़ी देर के लिए 1 करेंगे और 1 के बाद दोबारा 0 कर देंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा ये मिटाना चाहता हूँ, ये बहुत सारी चीजें हो गई हैं। ओके, नॉर्मल ऑपरेशन, दोनों इनपुट्स पे 0 होगा और यहाँ पे कोई एक स्टेट, लेट से अभी हमने जो फाइंड की थी वही मेंटेन रखी हुई है 1 0। हम चाहते हैं इसको रीसेट करना। हमने इसको 1 किया, जैसे ही ये 1 हुआ, स्टेट जो है वो चेंज हो गई। स्टेट ये जो है 1, ये 0 हो गया और ये 0 जो है ये 1 हो गया, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है ना एक दूसरे के। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, फिर हमने दोबारा इस 1 को 0 कर दिया। दिस इज द नॉर्मल ऑपरेशन इन द सर्किट्स। ये तो हो गया रीसेट के लिए ना। रीसेट का मतलब है कि क्यू पे आउटपुट 0 होना चाहिए। रीसेट मीन 0, सेट मीन 1। और इसका अपोजिट अगर हम करें, अपोजिट क्या है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम सपोज ये करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 0 है और 1। हम चाहते हैं इसको सेट करना। हमने इसको 1 किया, जैसे ही हमने इसको 1 किया ये 1 हो गया और ये जो है ये 0 हो गया और इसको दोबारा हमने 0 कर दिया। ठीक हो गया। ये इसका जो है नॉर्मल ऑपरेशन है और इसको एक फंक्शन टेबल की सूरत में हम लिखते हैं। तो फंक्शन टेबल में ये दो चीजें तो हमने डिस्कस कर ली। देयर इज आल्सो अनदर इनपुट विच इज फॉरबिडन, जो कि हम इस सर्किट के ऊपर नहीं चाहते। दैट इज 1 1। अगर दोनों जगहों पे 1 1 आ जाए तो, क्योंकि सेट और रीसेट के लिए किसी एक का 1 होना जरूरी है। अगर दोनों को, सेट को 1 और रीसेट को 1 कर देंगे, सिस्टम बिकम अनस्टेबल। तो अनस्टेबल बन जाएगा और वो फिर हम काम नहीं कर सकेंगे उसके ऊपर, तो लिहाजा वो फॉरबिडन होगा। फिर हम ये नहीं मालूम कर सकेंगे कि कौन सी स्टेट उसके पास है। सो दिस इज ए सर्किट जिसको हमें डिटेल से समझना था और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इसको समझ लिया है। जी बेटा, आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, द सेम थिंग applies to the नो सर। नॉट गेट एज वेल। थैंक यू बेटा। जो यही चीज जो है, ये जो नैंड गेट्स हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होती है। वहाँ डेफिनेशन सेट और रीसेट की थोड़ी डिफरेंट है, बट द सीक्वेंस इज द सेम। बिल्कुल ऐसे जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया, आप ऐसे तरीके से उसको वर्कआउट कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसमें देखिए आपके पास कैसा सर्किट बना हुआ है और बिल्कुल उसी तरीके से हम एंड गेट के लॉजिक से स्टार्ट करेंगे इसको समझने के लिए। एंड, नैंड, और उसके बाद फिर जो है वो हम ये जो टेबल है इसकी पहली लाइन से शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि इसका जो सेट है वो एक्चुअली 0 है और इसका रीसेट जो है वो 1 है। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। उसको ज़बानी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये सर्किट बिल्कुल बुनियादी सर्किट है, ये थोड़ी यूज होते हैं इनमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये सर्किट तो जस्ट क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज होते हैं। सो सिमिलर इज द सेटिंग। इसमें बहुत ज्यादा इन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है। देन वी गो टू अनदर circuit, the same circuit, but it now has the control input. Why control input? क्योंकि याद रखिए कि एक आपके पास एक ऐसी स्टेट मौजूद है जिसको अवॉइड करना जरूरी है, और वो कौन सी है? एक फॉरबिडन स्टेट। हम कोशिश करें वो फॉरबिडन स्टेट ना आए, उसके लिए प्रिकॉशंस है। वो प्रिकॉशंस क्या है?
वो प्रिकॉशंस जो है वो इस तरीके से कि हम एक इनेबल सर्किट यूज कर सकते हैं। जो इनेबल सर्किट क्या करेगा, यानी इनेबल इनपुट क्या करेगा, जब हम उसको इनेबल करेंगे तभी एस और आर की वैल्यू जो है वो आगे जाएगी। अदरवाइज एस और आर की इनपुट कुछ भी हो, सर्किट जो है ना वो आइसोलेटेड रहेगा जब तक हम इनेबल को जीरो रखेंगे। क्योंकि ये इनेबल जो है ये जब जीरो रखेंगे तो एस और आर में कोई भी चेंज हो, सर्किट पे कोई चेंज नहीं आएगी, स्टेट पे कोई चेंज नहीं आएगी। और इसी तरीके से जैसे ही हम इसको इनेबल करेंगे तो देयर विल बी 4 कंडीशंस, यानी ट्रूथ टेबल बनेगा पूरा। और ट्रूथ टेबल बताएगा कि जो है जब हम एस को 0 रखेंगे और जो है वो आर रीसेट को 1, सूरत में हमारे पास क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। और सेट को 1 करेंगे तो फिर हमारे पास जो है क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। इससे पहले जो भी वैल्यू नो, सिर्फ ये दो जो आर का 1 होना और एस का 1 होना, ये दो कंडीशंस जो है ये इफेक्टिव होगी, असरअंदाज होंगी। और साथ साथ इनेबल इनपुट का 1 होना जरूरी है। दैट इज द, इसमें सिर्फ इतना ही बताया हुआ है। और इसका भी एनालिसिस अगर हम चाहें तो इनपुट्स रख के कर सकते हैं। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, लेकिन हम कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अब हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो है वो हम दोबारा जब आएंगे तो हम इसके आगे जो मास्टर स्लेव और जो आगे सर्किट्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग तकरीबन सेव हो जाती है 5-7 मिनट में।